السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پچھلے 32 دنوں سے کسان سڑکوں پر رہ رہے ہیں۔ ہر معاملے میں کسان چاہتے ہیں کہ نئے زرعی قوانین کو ختم کیا جائے، جبکہ حکومت اس قانون میں ترمیم کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس تعطل کے درمیان کم از کم کسان حکومت سے بات کرنے پر راضی تو ہو گئے ہیں۔ اب کسان 29 دسمبر کو حکومت سے بات چیت کریں گے۔ کسان مذاکرات پر راضی ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی لکیر بھی کھینچ لی ہے۔ کسان اس لائن سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کسان 29 دسمبر کو حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، لیکن مرکز پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک ہفتہ بھر میں احتجاجی پروگرام تیار کیے ہیں۔ مدھیہ پردیش مذہبی آزادی بل 2020 کو ریاستی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، جس کے تحت شادی کے لیے یا جعل سازی کے ذریعے مذہب کی تبدیلی پر 10 سال جیل کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ وزیر داخلہ نروتم مشرا نے یہ بات بتائی۔ یہ بل کئی معنوں میں اتر پردیش کے غیر قانونی تبدیلی مذہب آرڈیننس 2020 کے مماثل ہے، جسے گزشتہ ماہ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت نے جاری کیا ہے، جس کے تحت شادی کی خاطر یا جعل سازی کے ذریعے تبدیلی مذہب پر 10 سال کی سزا کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مشرا نے بتایا کہ مدھیہ پردیش میں یہ قانون نافذ ہونے کے بعد ملک کا سب سے سخت قانون ہوگا۔ راجستھان میں بی جے پی کی واحد اتحادی راشٹریہ لوک تانترک پارٹی نے نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے زبردست احتجاج کے درمیان حکمراں این ڈی اے سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ اس طرح شرومنی اکالی دل کے بعد این ڈی اے سے نکلنے والی یہ دوسری پارٹی ہے۔ آر ایل پی کے لیڈر اور ناگور کے رکن پارلیمنٹ ہنومان بینی وال نے الور ضلع کے شاہجہاں پور میں کسانوں کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں این ڈی اے کے ساتھ فیویکال سے جڑا ہوا نہیں ہوں۔ آج میں خود کو این ڈی اے سے الگ کرتا ہوں۔ میں نے 3 زرعی قوانین کے خلاف بطور احتجاج این ڈی اے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ قوانین کسان دشمن ہیں۔ میں نے این ڈی اے کو چھوڑا ہے، لیکن کانگریس کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں آزادانہ اور شفاف ڈی ڈی سی انتخابات ہندوستان کے لیے فخر کا لمحہ ہے، جن میں ووٹرز نے دلچسپی سے حصہ لیا۔ انہوں نے انہیں جمہوریت کا سبق پڑھانے پر اپنے مخالفین پر تنقید کی۔ راہل گاندھی پر طنز کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ان کی حکومت نے مرکزی زیر انتظام علاقہ بننے کے 1 سال بعد جموں کشمیر میں پنچایت انتخابات مکمل کرائے ہیں۔ راہل گاندھی نے حال ہی میں الزام لگایا تھا کہ ہندوستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ مودی نے کہا کہ پوڈیچیری کی کانگریس حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود مجالس مقامی کے انتخابات نہیں کرائے۔ جموں کشمیر کے تمام افراد کو صحت بیمہ فوائد پہنچانے کے لیے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آیوشمان بھارت اسکیم شروع کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ پنچایت انتخابات کے ذریعے گرام سوراج کا مہاتما گاندھی کا خواب پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس موقع پر قوم کے سامنے اپنا درد رکھنا چاہتے ہیں۔ مودی نے کہا کہ دہلی میں بعض لوگ رات دن مودی کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ بار بار مجھے جمہوریت کا سبق پڑھاتے ہیں۔ میں آج انہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت این ڈی اے حکومت نے ملک کے شمال مشرقی خطے کی ترقی اور امن کی پابند عہد ہے۔ آسام کے صدر مقام گوہاٹی کے امین گاؤں پریڈ گراؤنڈ پر ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ ساری مشرقی ہندوستان، جس میں اڑیسہ، بہار، مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستیں بھی شامل ہیں، ہندوستان کی ترقی کے انجن میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شمال مشرقی خطے کو ترقی نہ دی جائے تو ہندوستان کی ترقی نامکمل ہو رہے گی۔ وزیر اعظم مودی ان ریاستوں کا تاحال 30 مرتبہ دورہ کرتے ہوئے یہاں کی ترقی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے، چاہے وہ ریل رابطہ ہو، سڑک یا فضائی رابطہ ہو۔ اس سلسلے میں کئی ایک انفراسٹرکچر کو قائم کیا گیا ہے۔ شیو سینا نے آج اپنے ترجمان سامنا میں لکھا ہے کہ کانگریس بی جے پی کے مقابلے میں مؤثر اپوزیشن کا رول ادا کرنے سے قاصر ہے، اس لیے تمام مخالف بی جے پی پارٹیاں بشمول سینا کو متحدہ ترقی پسند اتحاد یو پی اے کے بینر تلے آنا چاہیے۔ یہ تبصرہ ایک ایسے وقت شائع کیا گیا ہے جب ایک دن پہلے ہی سینا کے ترجمان اعلیٰ سنجے راوت نے کہا کہ یو پی اے میں توسیع کا وقت آ گیا ہے۔ سامنا نے اپنے اداریہ میں کہا کہ کسان قومی دارالحکومت کی سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن دہلی میں حکمراں اس احتجاج سے مکمل طور پر لا تعلق ہے۔ حکومت کے اس رویے کی اصل وجہ اپوزیشن کا منتشر اور کمزور ہونا ہے۔ غیر مؤثر اپوزیشن جمہوریت کے انتشار کا سبب بن رہا ہے۔ بی جے پی کی لیڈر اور مودی حکومت میں کابینی وزیر اسمرتی ایرانی پر نیشنل ویمن کمیشن کی رکن بنوانے کے نام پر 25 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی یا رشوت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ الزام بین الاقوامی شوٹر ریتیکا سنگھ نے لگاتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ریتیکا نے اسمرتی کے ساتھ جن 2 لوگوں کو ملزم بنایا ہے، ان میں سے ایک نے ان کے خلاف امیٹھی کے تھانے میں کیس درج کروایا ہے۔ ریتیکا نے ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں کیس داخل کر کے اسمرتی، ان کے پرائیویٹ سیکرٹری وجے گپتا اور ڈاکٹر رجنیش سنگھ پر 25 لاکھ روپے حاصل کرنے کا الزام عائد کیا۔
बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद तामीरी काम शुरू कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तामीर होने वाली राम मंदिर का काम शुरू होने से पहले ही मसाइल का शिकार हो गया है। तामीरी कामों में रुकावटें पैदा हो रही है। इससे पहले मंदिर की तामीर के लिए बुनियादें डाली गई थी, जो रेत वाली ज़मीन होने के सबब बुनियाद ज़मीन में मज़ीद धंस गई। राम मंदिर की तामीर के लिए बरसों से तैयार किए गए सुतून भी गैर मियारी पाए गए हैं। इंजीनियर्स और माहिरीन तामीरात ने इन सुतूनों का मायना किया तो इन्हें देखकर हैरानी हुई कि ये सुतून एक बड़ी इमारत की तामीर के मियार के मुताबिक नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रस्ट माहिरीन के मशवरे पर मुतबादिल इंतजामात पर गौर कर रहा है। जुनूब दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने हल्के इख्तियार वाले इलाकों में मौजूद गोश्त की दुकानों और रेस्टोरेंट्स में ये यकीनी बनाने का फैसला किया है कि इनके पास हलाल गोश्त है या झटका, इसको तहरीरी शक्ल में वाज़े करना होगा। गोया के गोश्त की दुकानदारों और रेस्टोरेंट मालिकीन को भी अवामी तौर पर यह बताना होगा कि वो हलाल या झटका में से कौन सा गोश्त लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ SDMC स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह राजदत्त गहलोत की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें काउंसलर अनीता तनोर और कमलेश शुक्ला ने कमेटी के सामने एक तजवीज़ रखी थी, जिसमें कहा गया कि रेस्टोरेंट और गोश्त की दुकानों के जरिए पेश किए जा रहे गोश्त के बारे में ये बताया जाए कि वो हलाल का है या झटके का। इसे लाजमी तौर पर लिखा जाना चाहिए ताकि ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके। इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। बॉलीवुड के चुलबुल पांडे सलमान खान आज अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में उन्होंने अपना जन्मदिन तो मनाया जरूर, लेकिन पूरे एहतियात के साथ। खुद सलमान खान ने इस बार अपने बर्थडे पर किसी भी बड़ी पार्टी के से इनकार कर दिया था। अब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे तस्वीरें वायरल हुई हैं जिन्हें देखकर कहा जा रहा है कि सलमान खान जो कहते हैं वही करते हैं। एक्टर ने अपने पानवेल वाले फार्म हाउस पर बर्थडे सेलिब्रेट किया है। हमेशा धूमधाम से बर्थडे मनाने वाले सलमान खान ने इस बार कोई बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया। उन्होंने अपने करीबी लोगों के साथ ही कुछ खास अंदाज में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। गुजरात में अगले पंचायत इलेक्शन के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी और AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी साथ आ गए हैं। दोनों पार्टियों ने इलेक्शन साथ लड़ने का फैसला किया है। ये जानकारी BTP मेंबर असेंबली छोटू भाई वसवा ने हफ्ते को दी है। वसवा ने बताया कि BTP और AIMIM आइन को बचाने के लिए एक साथ सियासी मैदान में उतरे हैं। फरवरी मार्च में ज़िला पंचायत और तहसील पंचायतों के इलेक्शन होने वाले हैं। वसवा जहां गुड़िया से मेंबर असेंबली है, उन्होंने कहा कि BTP और AIMIM गुजरात में होने जा रहे पंचायत इलेक्शन एक साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस और BJP दोनों को हटाने के लिए काम करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने सऊदी अरब को $50 करोड़ का असला फरोख्त करने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत की कुर्सी छोड़ने से कबल सऊदी अरब को असला लाइसेंस जारी करने का फैसला किया है। ताहम अमेरिकी मीडिया ने अमेरिकी सदर के इस इक़दाम पर शदीद तनकीद की है। मारूफ अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को मुतला किया कि वह सऊदी अरब को $50 करोड़ का असला फरोख्त करने के लाइसेंस जारी करने वाले हैं, जिसके बाद सऊदी अरब अमेरिका से बराह रास्त असला हासिल कर सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अपोजिशन ने फ़ौज के सरबराह और ISI चीफ पर तनकीद की है। जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला किया गया, ऐसा पहले कभी हुआ ना, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स की जानिब से तनख्वाहों पर नजरसानी करने का कवी इम्कान है। मौसूख ज़राए से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर KCR 30 दिसंबर को सरकारी मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात कर सकते हैं। PRC कमीशन की जानिब से 28 या 29 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को पेश करने की तौक़्क़े है। मुलाजमीन तंजीमों में ये बात गश्त कर रही है कि चीफ मिनिस्टर संक्रांति के तोहफे के तौर पर नए ऐलानात कर सकते हैं। मुलाजमीन और टीचर्स अपनी तनख्वाहों में इजाफे का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। बरतानिया से तेलंगाना आए मजीद 2 अफराद कोरोना वायरस से मुतासरा पाए गए हैं, जिसके बाद बरतानिया से तेलंगाना आने वाले मुसाफिरीन में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 18 तक पहुँच गई है। ताज़ा तौर पर आज मेडचल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 16 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए थे, जिनमें 4 का ताल्लुक़ हैदराबाद से, 4 का ताल्लुक़ मेडचल ज़िले से था, जबकि अजला मंचरियाल जगतियाल में 2 अफराद मुतासिर हुए थे। नलगुंडा, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट ज़िले से भी एक शख्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अब तक बरतानिया से आने के बाद कोरोना से मुतासिर होने वाले इन 18 अफराद में किसी में भी कोरोना की नई शक्ल नहीं पाई गई है। शहर हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी और तेज़ी से मकानात की तामीर के बाद हर माह नए बरक़ी कनेक्शंस में भी इजाफा होता जा रहा है। मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़्यादा कनेक्शंस का इजाफा हो रहा है, जबकि क़ल्ब शहर में भी अपार्टमेंट्स की तामीर के रुझान के बाद सारिफिन की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त शहर हैदराबाद में 54,12,000 घरेलू बरक़ी सारिफिन हैं, जबकि कमर्शियल सारिफिन की तादाद 4,46,156 है।
सनती सारिफीन 7 लाख तक के हैं। महकमा बरक़ी ने तखमीना लगाया है कि आइंदा 2 साल तक हर महीना 10 से 15 हज़ार नए बरक़ी कनेक्शंस का इजाफा होगा। इस तरह 1.5 से 2 लाख हर साल बरक़ी कनेक्शंस बढ़ेंगे, जिससे बरक़ी की रसीद में भी इजाफा होगा। तलब और रसीद के फ़र्क पर काबू पाने में महकमा बरक़ी कामयाब रहा है, लेकिन सारिफीन बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए 20 नए बरक़ी सब स्टेशन के क़याम का भी मंसूबा बनाया गया है। मुल्क में तामीराती शोबे में हैदराबाद सरफ़हरिस्त है। 7 मेट्रो शहरों में तामीराती शोबे की तरक्की का जायजा लेने पर इस साल दीगर शहरों के मुकाबले में हैदराबाद में रियल इस्टेट के शोबे ने काफ़ी तरक्की हासिल की है। नए यूनिट्स के आगाज़ के अलावा फ्लैट्स की फ़रोख्त में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर से कोविड-19 की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रियल इस्टेट का शोबा भी दीगर शोबों की तरह इन्हतात का शिकार रहा, लेकिन JLL की नई रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में रियल इस्टेट के शोबे ने काबिल लिहाज तरक्की की है। मुस्लिम एसोसिएशन जॉइंट एक्शन कमेटी के एक वफ़द ने आज मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए पुराने शहर हैदराबाद की हालत ज़ार से मुतालिक वाकिफ़ करवाया। डॉक्टर इकबाल जावेद मोहम्मद, हशमत अली शेख, शमसुद्दीन अहमद, मिर्ज़ा यूसुफ बेग, नईमुल्लाह शरीफ और सैयद सलीमुद्दीन पर मुश्तमिल वफ़द ने जी किशन रेड्डी से उस्मानिया हॉस्पिटल के इन पेशेंट ब्लॉक के दोबारा आगाज़ और पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तामीराती कामों को शुरू कराने का मुतालबा किया। डॉक्टर इकबाल जावेद ने कहा कि महात्मा गांधी बस स्टेशन तक फलकनुमा 6 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन मंजूर की गई, मगर चंद सियासी वजूहात की वजह से तामीराती काम शुरू नहीं किए गए, जबकि ये रूट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई मरतबा गैर सियासी समाजी तंजीमों और ख़ुद BJP की जानिब से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के आगाज़ के लिए नुमाइंदगी की गई, मगर नतायज सिफर ही रहे। उन्होंने किशन रेड्डी को इस सिलसिले में दिलचस्पी लेते हुए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तामीराती कामों को शुरू कराने का मुतालबा किया।